Okay, so hey guys, I'm finally back with another video after a very long time. I know मैंने बहुत टाइम से कोई एडवाइस वीडियो नहीं की है. So without further ado, let's get started with some generic relationship advice. So before starting with this video, let me clarify a few things. Number one, I am not here to question anyone's lifestyle, their way of living, their finances, their socio-economic background. In short, मैं यहाँ पे किसी के lifestyle को question करने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ. नंबर टू, ना मैं किसी को यहाँ पे जनरलाइज करने आया हूँ कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं और ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों से दूर रहना है. मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ. मैं यहाँ पे जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में मैंने देखा है, जितनी भी मैं रिलेशनशिप्स में रही हूँ सो फार, और जितना मैंने नोटिस किया है, उसी बेसिस पे मैं कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस स्टेट कर रही हूँ. दिस इज काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट और अ काइंड ऑफ व्हाट शुड आई से एन एडवाइस. अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना है, जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मतलब ये है कि मैरिज. डोंट गेट इनटू दैट कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज इक्वल टू मैरिज. नो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैन ऑल्सो मीन अ लिव इन रिलेशनशिप. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ये भी मतलब हो सकता है कि आप लोग ना शादी करना चाहते हो, ना लिव इन में रहना चाहते हो, लेकिन फॉर अ वाइल यू जस्ट वांट टू, मे बी फॉर 5 to 10 years you guys want to be in a proper relationship before getting married or being committed. Basically, if you want to be committed, here are a few checklists. So starting with number 1 on my list, I mean in 2023 इस चीज पर डिबेट हो रही है. आई फेल टू अंडरस्टैंड. इट्स सच अ शेम, विच इज डोंट गो बाय लुक्स. आई मीन दिस इज बेसिक. इस चीज पर ये पॉइंट भी नहीं होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट, आई डोंट नो व्हाई इवन आई एम मेकिंग इट अ फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, me and you are very judgmental. The society is very judgmental. And let's be honest, I have certain beauty standards. You all have certain beauty standards. We all have certain beauty standards. Which is why in many cases कई रिलेशनशिप्स कोलैप्स होती इसलिए नजर आती है क्योंकि हम सिर्फ लुक्स के बेसिस पे एक इंडिविजुअल को जज करते हैं. हम सिर्फ लुक्स के बेसिस पर ही किसी इंडिविजुअल को डेट करना चाहते हैं, किसी इंडिविजुअल के साथ सोना चाहते हैं, व्हाटएवर. हम सिर्फ लुक्स के बेसिस पे ही जाते हैं. हम लोग कभी ना उनसे इंटरैक्ट करते हैं, ना उनसे ठीक से कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं. हम लोग कभी कुछ भी टॉपिक, मतलब it's such a shame. I mean, why am I even ranting about this? Actually, yeah, it should be ranted about because people like me and you are responsible to a large extent to this whole culture of stereotypes and to this whole culture of looks. So in short, let's not go by looks and let's go by confidence, character, how an individual carries oneself. Don't confuse it with looks, but how an individual carries oneself, how an individual tries to take care of themselves, take care of their skin, their hair, their health, their mental health, how an individual tries to project themselves to the world. Let's go by those facets which are not directly looks oriented. Number 2 on my list. Now this is very much connected to my first point, which is don't go by this so-called social popularity. Because see, I'm not saying that all popular people are bad people, all these cool popular people are bad people, or I'm not saying that the it crowd is the bad crowd. No, I'm not trying to make that judgment over here. However, most of the popular people, not all popular people, most popular people have this tendency to be fake, have this tendency, and आपने बहुत बारी देखा होगा, the most popular people have the kind of a tendency to be superficial, to be fake, to be kind of they're chasing after something. They're chasing after a certain form of validation, a certain एक तरह का टेम्परेरी, एक तरह का मोमेंटरी वैलिडेशन, जो कि उनको रियल वर्ल्ड में मिलने नहीं वाला है. उनको रियल वर्ल्ड को घंटा फर्क पड़ता है कि वो बहुत पॉपुलर थे कॉलेज में या नहीं थे. रियल वर्ल्ड को उससे घंटा फर्क पड़ता है. जो असली की जो दुनिया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. असली की दुनिया
बहुत ही डिफरेंट लेवल पे चलती है, बहुत ही डिफरेंट डायनामिक्स पर चलती है. एंड दिस सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी मच एप्लीकेबल टू दोज पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड कॉलेज और हु आर इन हाई स्कूल. दिस इज अ वेरी एप्लीकेबल पॉइंट, क्योंकि ना क्या होता है कि वी आर सो एज टीनेजर्स स्पेशली वी आर सो ब्रेन वॉश्ड by the media, by movies, web series, TV shows, Bollywood, Hollywood, books, you name it. We all are so brainwashed by it that we really lack that understanding of real world nuances and how the world functions, right? एंड ऊपर से ये जो कई फिल्मों में या कई टीवी शोज में दिखाते कि ओ इफ यू नो यू डेट द पॉपुलर गाय और इफ यू डेट द पॉपुलर गर्ल यू हैव अ हैप्पी एंडिंग और यू हैव मेड इट, यू हैव अचीव्ड इट. दैट्स एंटायरली नॉट ट्रू. पीपल आर डिफरेंट एंड पॉपुलैरिटी सिर्फ यू नो अमीरी से नहीं आती या कोई टाइप ऑफ पार्टीज करने से वो पॉपुलैरिटी नहीं आती. I mean, आ सकती है, but that, I mean, it's not useful in the real world. Therefore, don't go by this notion of, oh, he's so popular, or oh, she's so popular, you know, let's date this, or let's have an ambition to date the most popular person in college, you know, because it's not really worth it. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, बिल्कुल भी worth it नहीं है. Because एक तो popular people are chasing after something. They're so blind in chasing after some sort of social validation, some sort of temporarily social validation. उसकी वजह से you are not their number one priority. आप उनकी नंबर वन प्रायोरिटी नहीं होते हो. उनका अपना सो कॉल्ड गैंग होता है, उनकी अपनी सो कॉल्ड क्लीक होती है प्रायोरिटी, उनकी अपनी सो कॉल्ड कूल पार्टीज होती है प्रायोरिटी, बट आप उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं होते हो. और अगर आप बाय चांस प्रायोरिटी होते भी हो तो आप उनकी नंबर वन प्रायोरिटी नहीं होते हो. आप उनकी मे बी नंबर 3 प्रायोरिटी होते हो, नंबर 2 प्रायोरिटी, मुश्किल से नंबर 2, नंबर 3 प्रायोरिटी, नंबर 4 प्रायोरिटी, नंबर 5 प्रायोरिटी होते हो. आप उनकी कभी टॉप प्रायोरिटी नहीं होते हो. उनको अपने कूल दोस्तों के लिए टाइम निकालना होता है, उनको अपनी कूल पार्टीज के लिए टाइम निकालना होता है, लेकिन वो आपके लिए कभी टाइम नहीं निकालेंगे. और फिर ऊपर से कई पॉपुलर, ये जो सो कॉल्ड पॉपुलर होते हैं, क्योंकि वो लोग इतने पॉपुलर होते हैं, दे थिंक कि सारे उनके पैरों की जमीन के नीचे. दे थिंक कि सबको उनकी बात सुननी चाहिए, सबको उनकी बात माननी चाहिए, सबको उनकी तरह बनना चाहिए. तो वो आपको भी नीचा दिखाएंगे, आपकी चॉइसेस को भी नीचा दिखाएंगे, आपको आपके जो सो कॉल्ड उन पॉपुलर लोगों के हिसाब से, जो सो कॉल्ड एवरेज, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल पॉपुलर पीपल, I'm not talking about all popular people. कई popular लोग मेरे भी दोस्त हैं, they're very very sweet. But some popular people, वो लोग आपको आपके दोस्तों से जुदा करेंगे, जो उन so called popular लोगों को लगता है कि they are not very cool to hang out with, or they are not very posh to hang out with, or they are not very our kind. They cannot sit with us type of people. वो आपको उनसे अलग करने लग जाएंगे. Slowly and slowly वो आपको उनसे cut off करने लग जाएंगे. Which brings me to my third point. How do they behave with different people? वो अपने से अलग लोगों से या वो अपने से कमतर लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? क्या वो अपने से कमतर लोगों को नीचा दिखाते हैं? क्या वो अपने से कमतर लोगों का मजाक उड़ाते हैं उनकी पीठ पीछे? क्या वो लोग बहुत कॉन्डिसेंडिंगली उनसे बात करते हैं? अगर वो ऐसा करते हैं, एंड रिमेम्बर, अगर वो दूसरों के साथ ऐसा कर सकते हैं, देन वो आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं. अगर वो अपने से कमतर लोगों को नीचा दिखा सकते हैं, देन वो आपको भी एक ना एक दिन वो लोग नीचा दिखाएंगे. पॉइंट नंबर 4, उनका कैरेक्टर कैसा है. एंड बाय कैरेक्टर आई मीन, आर दे सेंसिटिव, आर दे ऑनेस्ट, आर दे रिस्पॉन्सिबल, डू दे हैव अ सर्टेन सेंस ऑफ इंटेग्रिटी, आर दे हम्बल. किस तरह के इंसान है वो? क्या वो विनम्र इंसान है, बहुत घमंडी किस्म के इंसान है? आर दे सेंसिटिव टू योर नीड्स एंड आर दे सेंसिटिव टू अदर पीपल्स नीड्स, और आर दे वेरी वेरी इनसेंसिटिव? हाउ डू दे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स? हाउ डू दे what should I say, speak to opposing ideas? How do they deal with difficult situations? वो उनका कैरेक्टर बताता है. नंबर 5, वो लोग अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों को कैसे ट्रीट करते हैं. क्या वो अपने परिवार वालों का इस्तेमाल करते हैं? क्या वो अपने दोस्तों को यूज एंड थ्रो करते हैं? क्या वो अपने परिवार वालों से रोज लड़ते झगड़ते रहते हैं? कैसे रिलेशन है उनके फैमिली के साथ, उनकी अपनी फैमिली के साथ? कैसे उनके दोस्तों के साथ क्या रिलेशन है, उनके दोस्तों के साथ क्या डायनामिक्स है, उनके अपने सिबलिंग्स के साथ क्या डायनामिक्स है? क्या वो अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा अटैच्ड है
दो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट वो आगे जाके प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर वो बहुत ही ज्यादा अपनी फैमिली से अटैच्ड और बहुत ही ज्यादा क्लोज है, या अपने दोस्तों के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड, बहुत ज्यादा क्लोज है, और वो अपने हर दोस्तों की बात तो सुनते रहते हैं, या अपनी हर चाहे फैमिली गलत भी हो वो उनकी बात सुनते रहते हैं, चाहे सिबलिंग्स गलत भी हो उनकी बातों में आ जाते हैं, देन इट इज अ प्रॉब्लम, देन इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। बिकॉज नंबर 1, उस इंसान के पास अपना खुद का दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2, आप दोनों आप दोनों भी एक टीम हो। आपको उसकी लाइफ में इतना ही इंपॉर्टेंट होना है जितना कि उसके दोस्त इंपॉर्टेंट है, जितना ही उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, जितना कि उसके सिबलिंग्स इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता, अगर वो अपने परिवार वालों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, अगर वो अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, वो फिर बहुत क्लैशेस होंगे। ओके, आई अंडरस्टैंड कि दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने चाहिए, डेफिनेटली दैट इज अ गिवन। परिवार वालों के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रहने चाहिए, सिबलिंग्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रहने चाहिए, दैट इज अ गिवन। बट अगर उस चक्कर में आपकी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, देन प्लीज डोंट गेट इनटू सच अ रिलेशनशिप, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दोस काइंड ऑफ पीपल वो सिर्फ अपने परिवार और अपने दोस्तों के गुलाम है। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग इंस्पायर्ड, learning something from your family, from your friends, and being a total slave. Being a total slave, चाहे आप अपने बॉयफ्रेंड के ही क्यों ना गुलाम हो, अगर उस इंसान के पास आपके लिए स्टैंड लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, I'm sorry, you shouldn't be in a relationship with that person. Now, number 6. Okay, this is a very, very unpopular opinion. इसके लिए मुझे बहुत backlash मिल सकता है, but I will somehow say it in the face. Lifestyle is very, very important. What is their upbringing like? What is their socio-economic lifestyle like? What is their upbringing like? What is their socio-economic lifestyle like? Now, I know किसी के lifestyle पर और social popularity का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की wealth को देख के किसी को judge नहीं करना चाहिए, that is a given. लेकिन there is a catch to this. There is a very, very big catch to this. और वो catch ये है कि अगर आपकी upbringing सिमिलर फैशन में नहीं हुई है, अगर आपका लाइफस्टाइल एक सिमिलर फैशन में नहीं हुआ है, आई एम नॉट सेइंग कि लाइफस्टाइल शुड बी टोटली सेम, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन शुड बी टोटली सेम, बट जब आपकी अपब्रिंगिंग, आपका सोशियो इकोनॉमिक वे ऑफ लिविंग, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी फैमिली वैल्यूज वो सब सेम नहीं है, या वो सब एक सिमिलर पैटर्न में नहीं है, there can be a lot of difficulty, and especially in marriage or especially in any relationship. But if you guys are planning to get married, then it would be a very, very, very difficult marriage with lots of compromises, with lots of adjustments. It would be a very painful marriage. और lifestyle से ये मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि what is their favorite color, are they into Netflix or not, what kind of shows they watch on Netflix, do they watch news, what kind of books they read, what is their favorite genre of movies, etc, etc. No, नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं. दैट इज नॉट माई आइडिया. आई नो पीपल आर डिफरेंट, पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर डिफरेंट, पीपल्स माइंडसेट कैन बी अ लिटिल डिफरेंट. नो टू पीपल आर अलाइक. लाइफस्टाइल से मेरा क्लियरली ये मतलब है कि आपके गोल्स क्या है, आपके एम्बिशंस क्या है, आपके सर्टेन टैबू टॉपिक्स पे जैसे कि सेक्स हो गया, रिलीजियस व्यूज हो गए, आपके वो क्या है, आपकी क्या पोजिशनिंग उन व्यूज को लेकर. व्हाट आर देयर व्यूज ऑन चिल्ड्रन, व्हाट आर देयर views on having a nuclear family or living in a joint family, what are their views about certain types of people, what are their views on finance, what are their views on education, उनका mindset कैसा है, उनका जो social mindset होता है, उनका जो family में एक mindset होता है, family में जो mental level होता है. For example, have they seen women work, or have they grew up with women who are homemakers all their life working in kitchen? Have they grew up with designated gender roles, or have they grew up with, you know, like father bringing vegetables also, doing household chores also, mother working also and taking care of the children also? क्योंकि अगर आपके ऐसी चीज़ों पे आपके व्यूज बहुत डिफर करते हैं, अगर ऐसी चीज़ों पे आपकी अपब्रिंगिंग बहुत डिफर करती है,
देन माइंड यू बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है इन द नियर फ्यूचर, यू नो, बिकॉज उसका फ्रेंड सर्कल अलग होगा, आपका फ्रेंड सर्कल अलग होगा, उसकी यू नो लाइकिंग, उसका लाइफस्टाइल बहुत अलग होगा, आपका लाइफस्टाइल बहुत अलग होगा, उसका वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल अलग होगा, आपका वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल अलग होगा, उसकी फैमिली बहुत अलग होगी, अगर आप शादी करने का सोच रहे हो उसकी फैमिली बहुत अलग होगी, उसके फैमिली वैल्यूज बहुत अलग होंगे, उनकी फैमिली का जो यू नो कि कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, कौन से उपवास रखते हैं, कौन से रिचुअल्स फॉलो करते हैं, वो अलग होगा, किस टाइप का ड्रेस कोड उनकी फैमिली में, वो ड्रेस कोड अलग होगा, और आपकी फैमिली में वो सब चीजें अलग होंगी. सो somebody or the other will have to always compromise. And relationship, I personally believe relationship should never be about one compromising or the other making sacrifices. Relationship should be about helping each other and not constantly be making sacrifices or not constantly compromising for one another. For example, आप एक लड़के हो जो कि बहुत ही educated family से आता है, बहुत ही well educated family से आता है, खुद भी बहुत ही well educated है, सारी दुनिया की आपको knowledge है, आपको politics के बारे में भी पता है, आपको साइंस के बारे में भी पता है, आपको मूवीज के बारे में भी पता है, आपको इन शॉर्ट आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ योर अपब्रिंगिंग. दूसरा, यू हैव सीन वुमेन वर्किंग इन योर हाउस होल्ड, you have seen your father buying groceries, you have seen your mother holding a business, you have seen your family run, you know, in not so very ultra orthodox way. On top of that, आप बहुत ही financially well to do भी हो. I'm not saying that आप बहुत ही super rich हो, but you're from a decent upper middle class family. And then you fall in love with this girl who is from a very lower middle class family, whose mother is not very educated, whose father is also not very educated, not in terms of degrees, but even also like world understanding, whose GK is not very good, whose standard of living is not very appropriate to that of yours, right? She grew up seeing typical gender roles, and on top of that there's a very conservative style of religious views and dressing, and a very that girl always dresses modestly, always in a salwar kameez, and the family has some dressing expectations. और जो लड़की खुद होती है वो टीवी सीरियल्स देखते रहते हैं, उन्हीं सीरियल्स की दुनिया में मग्न रहते हैं, कोई आउटसाइड कोई करंट अफेयर्स के बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, वो बस सीरियल्स एंड मूवीज एंड नॉट प्रॉपर सिनेमा, वही घटिया बॉलीवुड मसाला सिनेमा. आई एम नॉट सेइंग दैट इज बैड, बट दैट लाइफस्टाइल इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू होल्ड. उनकी उस वजह से, उस लड़की की उसकी वजह से कॉन्वर्सेशन भी बहुत लिमिटेड हो जाती है, बिकॉज उसकी नॉलेज ही बहुत लिमिटेड है, उस लड़की की कॉन्वर्सेशन भी बहुत लिमिटेड हो जाती है. सो व्हेन यू एज अ गाय इंट्रोड्यूस हर टू योर फैमिली और टू योर फ्रेंड सर्कल, देयर आर हाई चांसेस दैट शी माइट मेस अप. देयर आर हाई चांसेस दैट देयर विल बी, you know, a lot of judgment, a lot of lack of understanding. She may not be able to hold a conversation. She may not even understand the kind of conversations you and your family are having or you and your friends are having. She may not be able to fit in with that kind of a crowd. और क्योंकि वो उस crowd में fit नहीं बैठ रही है और बहुत ही जैसे लॉस्ट रह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको, फिर उसके बाद क्या होता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स आपको अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं बिकॉज दे आर एम्बैरेस्ड ऑफ कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लोगे जिसके पास कोई IQ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, टीवी सीरियल की बातें करती रहती है. She is not into the topics that we are into. I'll give you another scenario. आप एक बहुत ही progressive family से आते हो. You're a woman who comes from a very progressive family. आपकी family ने आपको बहुत freedom दे रखी है. आपकी family allows you to have a boyfriend, allows you to dress whatever you want, allows you to work. Not very religious family, comes from a decent upper middle class family, and then you meet a boy who again comes from a decent upper middle class family but comes from a very traditional family, and they are very much into saving money and very miser and पैसे बचाओ. उनकी खुद की कोई प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं है, किराए के घर पे रह रहे होते हैं, अनलाइक योर फैमिली जिनकी अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर है, अपना प्रॉपर एक अपार्टमेंट या अपने प्रॉपर एक बंगला. आई एम नॉट सेइंग अ बड़ा बंगला, बट अपने प्रॉपर एक अपार्टमेंट है आपका, राइट? अनलाइक योर बॉयफ्रेंड्स फैमिली जो एक किराए के घर में रहती है, जिसकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, जिनकी माँ ने कभी वर्क नहीं किया आज की डेट में, या जिनके
फीमेल फैमिली मेंबर्स ने कभी वर्क नहीं किया, सारा दिन टीवी सीरियल्स, किट्टी पार्टी में जाना, गॉसिप करना। जो फीमेल मेंबर्स है उनका ड्रेसिंग सेंस काफी अलग होना, उनकी थिंकिंग प्रोसेस काफी अलग होना, मेल मेंबर्स की थिंकिंग प्रोसेस काफी अलग होना, देन यू वोंट बी एबल टू एडजस्ट टू हिज लाइफस्टाइल। तो उससे क्या होगा, वन पर्सन और द अदर विल ऑलवेज ट्राई टू इम्पोज चेंज कि तुम बदलो, तुम कॉम्प्रोमाइज करो, तुम कॉम्प्रोमाइज करो, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया अब तुम्हारी बारी, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया अब तुम्हारी बारी। नंबर 7, उनकी लव लैंग्वेज क्या है? आर दे इनटू गिविंग यू गिफ्ट्स? आर दे वेरी काइंड एंड सेंसिटिव टू यू? डू दे राइट पोम्स? I mean, love language, now this is a very superficial kind of a point, I know, but love language भी एक important tool है और या एक important point है check करने का, क्योंकि लव लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर लव टू दैट पर्सन, इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव टू दैट पर्सन। एंड लव लैंग्वेज हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ दिखाते हैं, हम लोग अपने सिबलिंग्स के साथ दिखाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट विद योर लवर। एंड नॉट जस्ट लव लैंग्वेज, वो लोग इंपॉर्टेंट चीजें आपसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या आपको बहुत बाद में पता चलता है, क्या वो आपको डायरेक्टली चीजें कम्युनिकेट करते हैं, क्या वो अपने फ्रेंड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, वो अपनी फैमिली से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो क्या वो सुनते भी हैं या वो बस करते हैं। नंबर 8, विल दे सपोर्ट यू? क्या वो आपकी मुसीबत में आपका साथ देंगे? क्या वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे? क्या जब आप वल्नरेबल सिचुएशन में होंगे, जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेज पे होंगे, everyone has their vulnerable moments, everyone has their own sad moments, तो क्या वो उस टाइम पे आपको सपोर्ट करेगा? क्या वो उस टाइम पे आपका साथ देगा? क्या वो उस टाइम पे आपको एक शोल्डर देगा टू क्राई ऑन? क्या वो उस टाइम पे आपको काउंसिल करेगा, या वो उस टाइम पे आपको ओके या फाइन, आई डोंट वांट टू हियर इट, एंड वॉक्स अवे? और क्या वो आपको बोलेगा यार तुम हमेशा रोती रहते हो यार, पता नहीं क्या, तुम तो हमेशा खुशी नहीं रहती हो? फिर वो लड़ाई करना शुरू कर देगा। क्या वो आपके सीक्रेट्स डिस्क्लोज करेगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन रिलेशनशिप इज बिल्ट ऑन स्टैंडिंग अप फॉर ईच अदर। नाउ नंबर 9, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप शादी करना चाहते हो या आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना है, दैट मीन्स लिव इन और जस्ट अ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप। It is very important. How do they treat their finances? Now, finances and money can define a relationship. It can make or break a relationship. How do they treat their finances? Are they under so much of debt? Do they have the habit of borrowing money from others and not giving it back? या उनकी आदत बहुत ज्यादा पैसे सेव करने की है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है because again your money is your money. Let's take there's a girl, she does not earn as much as the guy, right? She for her very lavish lifestyle she keeps on borrowing money from the guy, or she asks the guy like can you pay me this and this, and then जब लड़का किसी financial मुसीबत में होता है, the girl is like no I will not help you financially, it's my money, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। एंड ये सिर्फ कपल्स में ही नहीं देखा है, ये मैंने दोस्तों में भी देखा है कि दोस्त ने पैसे उधार ले लिए और कभी वापस नहीं किए, उधार के पैसे लेके भाग गया, राइट? फैमिलीज में भी हमने कई बार देखा है। हाउ केयरफुल आर दे विद देयर finances is very essential, is very important if you want to restore a long-term relationship. Number 10, how much control do they have over their vices? So vices से सिर्फ मेरा ये मतलब नहीं है कि सिगरेट फूकना एंड अल्कोहल। vices का मतलब हमने जैसे मनी की बात की, शॉपिंग करना भी एक तरह से वाइस भी माना जाता है। तो क्या वो बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, बहुत ज्यादा इंडल्ज करते हैं? क्या वो लोग बहुत ज्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट है? दैट इज ऑल्सो अ वाइस, वो भी एक वाइस है एक तरह से। अब जैसे मान के चलो कि कोई इंसान है जिसको अल्कोहल पीने की बहुत ही बुरी लत लगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पार्टी में 1-2 बार अल्कोहल पी लिया, right, just for fun or just for like social drinking or just casual daily drinking. I am talking about दिन रात, even during work hours वो पीता ही रहता है, मतलब alcoholic है basically, right? A typical alcoholic, and they can't help it. They don't have that kind of a control over their vices. You cannot be their attendant, their nurse, their therapist all the time. Blood relation support is very important. Even friend support is very important. Even a relationship support is very important. But if the person does not want to fix themselves, if the person wants to
stay within the vices, if the person deliberately does not have control over their vices, then you really cannot help him. You must walk out of the relationship ASAP. Which brings me to my number 11 point. Are they emotionally mature? Are they emotionally mature to handle tough situations? Are they emotionally mature to deal with certain kind of people? Are they emotionally mature to deal with some toxic people? Or are they very, very emotionally immature? Do they get angry very easily? Or are they very calm in any given situation, any given problem? Do they get easily worked up in any situation, or they're like, okay, let's find out a solution? Okay, see, we all have our bad days, we all have our trigger points. हम सबके अपने अपने गुस्सा दिलाने वाले पॉइंट्स होते हैं. हम सबके अपने अपने ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमको गुस्सा आता है और वो गुस्सा जस्टिफाइड भी होता है कई बारी. लेकिन क्या वो इमोशनली टफ सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं? वी ऑल गेट स्ट्रेस्ड, वी ऑल गेट एंग्री. एंगर इज अ वेरी ह्यूमन इमोशन, जेलसी इज अ वेरी ह्यूमन इमोशन, बट टू हैंडल दोज इमोशंस, that is called emotional maturity. To handle your anger in a dignified manner, to not get unnecessarily angry, unnecessarily jealous मत हो जाना, that is called emotional maturity. एक mature way से situations को deal करना. Conflict resolution, that is also maturity. Emotional maturity, listening to them in a fair and free manner, but not getting influenced by anybody's opinion. Not even your bestest friend's opinion is emotional maturity. Which also brings me to, are they understanding to your needs? Are they understanding to your behavior? Do they understand where your behavior comes from? Number 12, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं? Now this is a very very important point. क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं किसी भी वे पॉसिबल में? अगर आप किसी टफ सिचुएशन में हो, क्या वो आपको धोखा देंगे या आपकी मदद करेंगे? अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको किसी चीज में मदद चाहिए, क्या वो आपकी मदद करने को राजी है? या वो लोग बस हाँ भाई मैं क्यों करूं, मेरे को नहीं करना. नंबर 13, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू दे एड एनी पॉजिटिव वैल्यू इन योर लाइफ? आई एम नॉट सेइंग ट्राइंग टू चेंज यू, बट क्या वो आपको कुछ लाइफ के बारे में सिखा कर जाते हैं? क्या वो आपको कुछ अपने बारे में सिखा कर जाते हैं? क्या वो आपको कुछ दुनिया के बारे में सिखा के जाते हैं? क्या वो कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं? या वो लोग हमेशा नेगेटिव होते हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में डालते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाते हैं अपनी ज़िंदगी में? बिकॉज वो लोग अगर खुद आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं ला सकते, देन बिलीव मी उनकी खुद की लाइफ कोई पॉजिटिव नहीं है. ये लोग वैसे होते हैं कि वो लोग अपने दोस्तों के सामने अपने दोस्तों की तारीफ करेंगे, लेकिन आपके सामने अपने दोस्तों की बुराई करेंगे. आपके दोस्तों के सामने आपके दोस्तों की बहुत तारीफ करेंगे, बट देन आपके सामने आपके दोस्तों की बिचिंग करेंगे, बोलेंगे इनसे दूर रहो, ये बहुत खराब किस्म के लोग हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर बहुत ज्यादा आपके मन में भी नेगेटिविटी होगी, आपके मन में भी ये होगा कि अरे मैं किन दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रही हूँ. यू विल स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ. मेक श्योर दैट ही एड सम पॉजिटिव वैल्यू टू योर लाइफ, in terms of knowledge, in terms of wisdom, in terms of worldly life, कुछ भी दुनिया के बारे में, in terms of mindset, in terms of attitude, कुछ आपके अंदर positive. So that's it. ये बहुत ही लेंदी वीडियो था, बहुत ही लेंदी एडवाइस वीडियो था. मैंने ये मिड आफ्टरनून में काइंड ऑफ 3 बजे 3:30 बजे के तकरीबन शुरू किया था. एंड लुक व्हाट द टाइम इज, इट्स ऑलरेडी 6:51. आई मीन ऑलमोस्ट 7 o'clock. 2 से 3 घंटे शायद मैंने एक वीडियो पे लगा दिए प्रॉपर. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप मेरे व्यू से अग्री करते देन डू लीव अ कमेंट बिलो. अगर आप मेरे व्यू से डिसएग्री भी करते देन डू लीव अ कमेंट बिलो. अगर मैंने इन टॉपिक्स में से, इन 13 पॉइंट्स में से कोई और मैंने पॉइंट मिस कर दिया हो देन डू लीव अ कमेंट बिलो. एंड डेफिनेटली मैं एक हार्ट जरूर दूंगी. एंड डेफिनेटली अगर मौका मिले देन आई विल ऑल्सो रिप्लाई टू योर कॉमेंट. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो. एंड अगर आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करना हो, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना हो,
अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अगर आप वर्किंग वुमन हो, अगर आप लोगों की शादी होने वाली है, अगर आप लिव इन में हो, लॉन्ग टर्म कमिटेड में हो, अगर आप किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में हो, देन डू शेयर दिस वीडियो, मेक दिस वीडियो go viral, and do leave your comments, do leave your thoughts, do share me your stories, and do let me know how the video was. Till then, see you next time.